What is up, people? It's Blushy badass. In this video, we will talk about body posture and postural deformity. By the way, अगर आपको जानना है कि आपको वर्कआउट करते समय कौन से वर्कआउट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आपको लेग्स वगैरह स्किप करना चाहिए या नहीं, तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर चेक करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। So let's begin. तो मैं फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन जब वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आसानी से नोटिस की जा सके, तो वो बहुत ही बुरा दिखता है। जब भी आपको कोई साइड से या फिर थोड़ा दूर से दिखता है, तो आपका पोस्चर बहुत ही ज़्यादा नोटिस किया जाता है। इसीलिए आप इन पर काम करके इन्हें क्योर कर सकते हैं, अपनी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ये रहा हमारा इंडेक्स। नंबर 1 से शुरू करता हूँ। नॉक नीज। जब आपके पैर आपस में टकराने लग जाते हैं, उसे नॉक नीज कहते हैं। यू कैन सी द पिक्चर अवेलेबल ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। इसके कॉजेज हैं ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, muscular or ligament weakness at early age, fractures and injuries involving the knee joint, lack of balanced diet, and flat foot. The precautions हैं: balanced diet should be taken. Baby should not be forced to walk at a very early age. Perform proper exercises. इसके रेमेडीज हैं: कीप अ पिलो बिटवीन द नीज एंड स्टैंड इरेक्ट फॉर सम टाइम। मतलब कि एक पिलो को अपने पैरों के बीच में रखना है और खड़ा रहना है और हल्का सा प्रेशर करना है, मतलब बीच में प्रेशर देना है, ताकि आपके पैर का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर शेप में आ सके। यूज कॉड लिवर ऑयल एंड यू मे ऑल्सो ट्राई हॉर्स राइडिंग। नेक्स्ट है फ्लैट फुट। जब आपके पैर ऐसे फ्लैट दिखते हैं, उसे फ्लैट फुट कहते हैं। इसे क्योर किया जा सकता है। पहले आपको ये पता करना होगा कि आपको ये है भी या नहीं। अपने पैरों को हल्का सा गीला करके एक ऐसे सरफेस पर चलिए जहाँ पर आपके फुट मार्क्स दिखें। अगर ऐसे आते हैं, यू कैन सी द पिक, ऐसे आते हैं तो आपको फ्लैट फुट नहीं है, और अगर ऐसे आते हैं तो आपको है। फ्लैट फुट के कॉजेस हैं वीक मसल्स, ओबेसिटी, यूजिंग improper shoes, carrying heavy weight for a long period, and standing for a long time. Precautions हैं: always wear the shoes of proper shape and size. Obesity should be avoided. High heels should be avoided. Don't carry heavy weight for a long period of time. Babies should not be forced to walk at very early age. Flat foot की रेमेडीज हैं: walk on heels, lose weight, keep on rope, तब रस्सी कूदना, perform stretching exercises, use good quality shoes, walk barefooted over the sand, run fast barefooted over clean surface. नंबर 3 पर है राउंड शोल्डर्स। मतलब आपके जो कंधे हैं वो लटके लटके लगते हैं। इसके कॉजेस हैं ड्यू टू हेरिडिटी, by wearing very tight clothes, by sitting on improper furniture, by walking, sitting in bent position, lack of proper exercise. Precautions हैं: never sit, stand or walk in bent position, use loose clothes,
Always use furniture to sit. के लिए remedial exercises हैं. Keep your tips of fingers on your shoulders and encircle your elbows clockwise and anti-clockwise direction for some number of time. स्कूल में करवाते थे नहीं, वही है. कंधे पर अपने हाथ रखकर एल्बोस घुमाना है. और hold the horizontal bars for some time. Yoga for round shoulders. Perform Chakra Asana and Dhanur Asana regularly. Next है Lord Osis. You can see the picture of normal person and a person with this lordosis deformity. Lordosis इसके causes हैं imbalanced diet, improper development of muscles, taking more food than required, overweight or obesity, diseases of spinal muscles. The precautions हैं balanced diet should be taken, stand straight while carrying weight, never take excessive food, maintain your weight. ये ट्रीटमेंट या फिर रेमेडीज हैं परफॉर्म toe touching at least 10 times, perform sit-up regularly, stand straight and touch your feet with hand. Or there are some asanas that you may try. Yoga asana. Number 1, Paschim Modan asana, Viparit Karni and Halasana. Do these asanas regularly. Number 5 है काइफोसिस. इसमें आपकी गर्दन ऐसी आगे की तरफ दिखती है. ये बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है. इसके कॉजेस हैं malnutrition, carrying heavy load, improper furniture, weak muscles, bending while walking, wearing shapeless and tight clothes due to heredity. The precautions हैं adopt correct posture, wear loose clothes and use suitable furniture. इसके ट्रीटमेंट्स हैं यानी कि रेमेडीज. ऑलवेज कीप अ पिलो अंडर योर बैक व्हाइल स्लीपिंग. मतलब सोते वक्त अपनी पीठ के पीछे एक पिलो रखकर सोना होता है. और बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन. परफॉर्म स्विमिंग और परफॉर्म धनुरासन, चक्रासन and cobra आसन regularly. नेक्स्ट है स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस में आपकी जो स्पाइनल है एक तरीके से टेढ़ी हो जाती है. As you can see the picture on the screen. के कॉजेस हैं एक तो बर्थ डिफेक्ट होता है. नेक्स्ट wear and tear in the spine. Difference in length of the leg. Lifting weight towards one side in routine. बार बार एक ही तरफ वजन उठाना. Wrong standing posture. Unsuitable furniture. इसके प्रिकॉशंस हैं कि किसी भी एक हाथ में वेट रखकर ज़्यादा समय तक ना चले. Always stand in correct posture. Use suitable furniture. Balanced diet should be taken. Study should be avoided in sideways bending position. वरना बिना पढ़े तो
एल लग जाते हैं। स्कोलियोसिस ट्रीटमेंट्स हैं, यानी कि रेमेडीज। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार in both hands and let your body hang for some time। मतलब सीधी सी बात है कि सीधा लटकना है। वो जो अपनी चिनअप्स वाली बार आती है ना, उन पर स्विम बाय यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक। इसके बारे में आप आसानी से गूगल पर सर्च कर सकते हैं। परफॉर्मिंग बेंडिंग एक्सरसाइजेस इन अपोजिट साइड ऑफ द सी शेप्ड कर्व। मतलब अगर आपका लेफ्ट साइड में सी शेप बनता है तो आप राइट साइड, मतलब कि जिस भी साइड आपके सी का मुंह खुलता है उसके अपोजिट साइड में आपको करना है बेंडिंग। इसके अलावा आप त्रिकोणासन, अर्धचक्रासन भी परफॉर्म कर सकते हैं अपोजिट पोजीशन में। मतलब जिस साइड सी का मुंह खुलता है उसके अपोजिट पोजीशन में। अगर राइट हैंड पे खुलता है तो आप लेफ्ट में बेंडिंग कीजिए, अगर लेफ्ट हैंड पे खुलता है तो आप राइट में बेंडिंग कीजिए। नेक्स्ट है वो लेग्स। इसमें आपके पैर नॉर्मल से ज़्यादा खुले हुए दिखते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसके कॉजेस हैं रिकेट्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, improper way of walking, obesity, using defaulted footwear, and forcing babies to walk at very early stage। इसके precautions हैं don't carry heavy weight childhood, babies should not be forced to walk at very early stage, balanced diet should be taken, always walk properly, use good quality shoes। इसकी रेमेडीज हैं विटामिन डी एंड कैल्शियम should be taken, walk on inner edge of the feet, walk by bending the toes inward and perform गरुड़ासन रेगुलरली। इसके अलावा भी मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी टिप है कि आप कोई भी एक वर्कआउट जिम कर लीजिए, योगा कर लीजिए या मार्शल आर्ट सीख लीजिए। आपका पोस्चर, ओवरऑल पोस्चर खुद ब खुद सही होने लगेगा। That's it for today's video. Badass people, don't forget to like, share and subscribe।